A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters of your macro and the Indian economic development. We have discussed the numbers of the numerical questions related to the national income, income determination and the multiplier. Simultaneously, we have also discussing the some theoretical part of your economics like foreign exchange rate, balance of payment, foreign exchange rate, balance of government budget, AD and AS, aggregate demand, aggregate supply and its related aggregates like MPC, MPS, APC, APS. After that, we have discussed about the topic that is the theoretical part of the full employment, over full employment, under full employment situation, as well as the next topic that we have discussed, that is excess demand, deficient demand, and what is the fiscal policy and what are the different measures of the fiscal policy, that is government revenue and the government expenditure. So in the government revenue, public debt, taxes and the deficit financing is done by the government, as well as the government also done the various expenditure on the various sector and as well as several areas. Okay, so after that we have started to solve these some previous year paper. First of all, we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in the 2020, October 2020. After that, we have discussed the CBSE examination paper of 2020. Next, we have discussed the CBSE examination paper of 2019. After that, we have started to solve some numerical questions as well as the theoretical part of the different areas, different years related questions. So in the last class also we have discussed several questions related to the year 2015, 2016, All India and the different sets of the All India, as well as the Delhi set 2016, set A, set B and so on. And in today's class also we are going to start to do some numerical questions, as well as we also studied some theoretical part of your economics. Okay, so let's get started. Okay, so let's do some questions. The question is given here. It is already came in Delhi 2011. Delhi 2011. It is of 4 marks. 4 mark का ये question है. Okay. So if national income is rupees 50 crore, if national income is rupees 50 crores and saving is rupees 5 crore, and saving is rupees 5 crores, find out APC, find out average propensity to consume, average propensity to consume when income rises, when income is donated by the Y, when income rises to 60 crore to rupees 60 crores and saving to rupees 9 crores, what will be the APC and the what MPS? So इस केस में what will be APC? APC means average propensity to consume, and
MPS, that is marginal propensity to save. ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इसमें कह रहा है कि इफ नेशनल इनकम इज ₹50 करोड़, a country's national income is given there, that is 50 crore, and saving is ₹5 crore. सेविंग कितनी हो रही है? 5 करोड़ हो रही है. फाइंड आउट एपीसी. इस केस में आपको एपीसी फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हेन इनकम इज दैट इज वाई, व्हेन इनकम राइजेस टू ₹60 करोड़. जब इनकम आपकी 60 करोड़ पे राइज हो रही है एंड सेविंग टू ₹9 करोड़, और सेविंग 9 करोड़ पे राइज हो रही है. ओके, सो व्हाट विल बी द एपीसी एंड द एमपीएस. उस केस में एपीसी और एमपीसी कितना ज्यादा होगा. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन कह रहा है एनआई इज दैट इज वाई. वाई इज गिवन 50 करोड़, राइट. वाई दिया है 50 करोड़, एस दिया है आपका 5 करोड़. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सी निकालना होगा. सी मीन्स कंजप्शन. कंजप्शन इज इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, या सी प्लस आई, एस इक्वल टू आई होता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अगर हमको सी निकालना है, अदर वी हैव टू कैलकुलेट द कंजप्शन, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इनकम फ्रॉम द सेविंग. So S दिया already, Y is 45, so C equal to Y minus S. तो ये कितना हो गया? C हो गया आपका 50 minus 5, C equal to ₹45, right? Next you have to calculate APC, average propensity to consume. Average propensity to consume क्या होता है कि इनकम हर लेवल पे जितनी हो रही है उस लेवल पे हम लोग कंजप्शन कितना ज्यादा कर रहे हैं. सो एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इन्वेस्टमेंट, सी अपॉन वाई, राइट. तो यहाँ पे आपका सी कितना दिया है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 45 डिवाइडेड बाई वाई आपका कितना दिया, इनकम. उसको कैलकुलेट करते हैं. सो आपका एपीसी विल बी 0.9 आ गया. एपीसी इज 0.9, यस 0.9 आपका क्या आ गया, एपीसी आ गया, राइट. नेक्स्ट सब क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हेन वाई राइजेस टू 60 करोड़, जब आपकी अब इनकम राइज हो रही है 60 करोड़ एंड सेविंग टू ₹9 करोड़, और सेविंग अब 9 करोड़ हो रही है, सो व्हाट विल बी द एपीसी. सो इस स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी को कैलकुलेट कर लेंगे. ये आपका फर्स्ट एपीसी कैलकुलेट हो गया. सेकेंड अब हम लोग फिर वैसे ही करेंगे. वाई दिया है कितना, ₹60 करोड़, सेविंग इज गिवन ₹9 करोड़. सो सी कैलकुलेट करेंगे, वाई माइनस एस, दैट इज 60 माइनस 9, ₹51 करोड़. कंजप्शन हो गया ₹51 करोड़. सो एपीसी इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन वाई. तो सी आपका कंजप्शन कितना दिया है, 51 अपॉन 60. ओके, 51 अपॉन 60 हो गया. 51 अपॉन 60 एपीसी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.85. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.85 आ जाएगा. ठीक है, तो दो एपीसी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया. जब इनकम 50 करोड़ दी थी, सेविंग 5 करोड़ था. जब इनकम राइज होकर 60 करोड़ हो गई और सेविंग 9 करोड़ हो गया, तो ये हम लोग ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है. नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं. क्या कह रहा है कि अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है. सो एमपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि या तो आप एमपीसी निकाल के 1 माइनस एमपीसी करके एमपीएस निकालो, या तो सीधे आप लोग एमपीएस भी निकाल सकते हो. तो एमपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई.
अब डेल्टा एस कैसे निकलेगा? डेल्टा एस निकलेगा चेंज इन सेविंग। सेविंग में कितना चेंज हुआ है? पहले 5 था, अब 9, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4 रुपीज 4 करोड़। डेल्टा वाई आपका क्या आ गया? डेल्टा वाई आपका आ गया 60। इनकम कितने पे राइज हुई है? 60 करोड़ पे, और इनकम पहले कितनी थी? 10। तो 60 माइनस 50, तो कितना आ गया? रुपीज 10 करोड़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, MPS इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सो MPS विल बी, डेल्टा एस कितना है? 4 10, so MPS will be 0.4। अभी इसी केस में राइट 0. अभी इसी क्वेश्चन में आपके ये भी दे दे कि कैलकुलेट व्हाट विल बी दी APC, MPS एंड दी MPC, कि MPC भी इस केस में क्या होगा। तो उस कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है? MPS निकल गया, और 1 माइनस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS। सो 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो MPC की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 0.6। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कब आया है? दिल्ली 2010, दिल्ली का ही पेपर क्वेश्चन है। सेट सी में, ठीक है। कह रहा है, क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द रेशियो ऑफ APC एंड APS, APC और APS का क्या दिया है? 5:3। द लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज 6,000। हाउ मच आर दी सेविंग्स? How much are the saving? आपकी यहाँ पे सेविंग कितनी होगी? ठीक है, APS दिया है और APC दिया है 5:3 में, और कह रहा है कि द लेवल ऑफ इनकम आपका Y यहाँ पे दे रखा है। ठीक, Y दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेविंग कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे कर देखोगे तो APC एंड APS का दिया है रेशियो 5:3। तो अगर हम लोग को APC लेना होगा तो APC हो जाएगा आपका 5/8, APS हो जाएगा आपका 3/8, क्योंकि दोनों का सम कितना हो गया? 5 + 3 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, और उसका 5 पार्ट APC है और 8 में 3 पार्ट APS का है। सो APS इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू होता है आपका S/Y। ठीक है, APS इक्वल टू क्या होता है? S/Y होता है। सो APS की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 3/8 इज इक्वल टू S दिया है। S आपको कैलकुलेट करना है। S इनकम कितनी दी हुई है? 6,000 दी हुई है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 18,000, देन S इक्वल टू अपॉन 8, देन S इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से भी कट जाएगा आगे। ठीक है, 2 4 जा
4 से 4, यस, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ये आ गया आपका 18,000 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 2 जा 16, 4, तो आपकी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, ओके। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 18,000, ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, ये 2, देन 8 2 जा 16, ये कितना हुआ 4, 0, 8 5 जा 40 एंड 0, सो एस कितना आ गया आपका, रुपीज 22,250। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ही सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा देखना था कि क्या वैल्यू दी है और हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इन एन इकोनॉमी द रेशियो ऑफ एपीसी इज टू एपीएस, एपीएस और एपीसी का रेशियो क्या दे रहा है, 5:3 दे रहा है। द लेवल ऑफ इनकम इज ₹6,000, जो लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी है, 6,000 है। सो हाउ मच आर दी सेविंग, हाउ मच आर दी सेविंग, सेविंग कितनी होगी, कैलकुलेट, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो एपीसी इज टू एपीएस आपका 5:3 हो गया, और एपीसी इसका कितना पार्ट हो गया, 5/8, एपीएस हो गया 3/8, सो एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, सो एपीएस की वैल्यू 3/8 अपॉन एस अपॉन 6,000, हम लोगों ने वाई की वैल्यू रख दी, क्रॉस कैलकुलेट करके 2250 कैलकुलेट कर लिया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। The question is related to, that is what are time deposit and what are demand deposit। ये जो demand deposit question है ये आपका CBSE 2014, दिल्ली 2013, ऑल इंडिया 2012, 11, 10 बहुत ज़्यादा टाइम से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ऑल इंडिया में 2010, 11, 12 एंड देन CBSE दिल्ली, हर बार ये क्वेश्चन आया है जो क्या है, किससे रिलेटेड है, कह रहा है कि व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो इधर कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट आर करेंट अकाउंट डिपॉजिट विद द बैंक्स और द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर रीपेबल ऑन डिमांड बाय द चेक्स, नो इंटरेस्ट पेमेंट आर गिवन ऑन दीज डिपॉजिट, ठीक है। ये जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो करेंट अकाउंट डिपॉजिट होते हैं, बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कहते हैं, विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, कि किसको कभी भी मनी की ज़रूरत है वो क्या कर सकता है, वो बैंक से जाके फंड को, मनी को विथड्रॉ कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, राइट। तो क्वेश्चन था व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइम डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पर कब कब आया है, यह है ऑल इंडिया 2012 एंड दिल्ली 2010। ठीक है, वाटर टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट आपको पता है ये फिक्स टर्म डिपॉजिट होता है, जिसको क्या है एक टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने डिपॉजिट फंड को बैंक में डिपॉजिट किया है फॉर द ईयर 5 years, तो वो क्या है कि वो फिक्स पीरियड के लिए, वो कभी भी इट कान बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। इसको हम लोग डिमांड, जब भी किसी को ज़रूरत है वो क्या कर, वो कभी भी मनी को विथड्रॉ नहीं कर सकता। इन केस इफ ही और शी इज नीडेड ही कैन विथड्रॉ दी मनी, बट दे हैव टू पे सम फाइन्स। उनको क्या करना पड़ेगा, उस केस में कुछ फाइन्स को भी पे करना
पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या देखिए दिख रहा है, टाइम डिपॉजिट आर फिक्स टर्म डिपॉजिट हैविंग अ फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। उसका क्या होता है, एक फिक्स पीरियड होता है मैच्योरिटी का। वेयर द टर्म ऑफ डिपॉजिट में वेरी फ्रॉम द 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। जिसका जो टाइम पीरियड है वो वेरी कर सकता है 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बीच में जिसका जो टाइम पीरियड है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, बट इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, इसकी मैच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है। अगर उस मैच्योरिटी के बाद ही मनी को विथड्रॉ किया जाता है, सो चेक कैन नॉट बी इशूड ऑन देम। इन पे कोई भी चेक्स इशू नहीं होते हैं। एंड दे आर नॉट रिपेबल ऑन द डिमांड, ये रिपेबल भी नहीं होते हैं डिमांड पे, बट दीज डिपॉजिट यील्ड्स इंटरेस्ट फॉर द डिपॉजिटर। बट इन सारे डिपॉजिट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा किसी भी डिपॉजिटर को और कस्टमर्स को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया था आपका वही कि हाउ जो कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट एंड एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ये देखिए ऑल इंडिया 2013 और दिल्ली 2013 दोनों में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, ये आया आपका ऑल इंडिया 2013 में एंड दिल्ली 2013 का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन credit is credit with the help of hypothetical example. यहाँ पे क्या करना है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको पता है क्रेडिट एक कंसेप्ट होता है क्रेडिट क्रिएशन एंड वन कंसेप्ट इज देयर दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। सो जब भी हम लोग बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन की, क्रेडिट कौन क्रिएट करता है, और जब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल की, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती हैं। सो इट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स। और व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट कंट्रोल, सो इट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। सो इन इंडिया इट इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ये काम करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो अब इसमें आंसर अगर हमें लिखना पड़ेगा तो हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो अजम्पशंस लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे, दैट all transactions are banned. Assumptions, all transactions are banned. And second one is all banks are 1 unit. सारे ही बैंक क्या है, 1 यूनिट है। और ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होंगे, मनी के ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो किस में होंगे, बैंक में ही होंगे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट
अज्यूम करते हैं दैट इज 1000, ठीक है। और LRR, ये भी हम लोग कोई अजम्पशन ही है ये सारे। LRR मीन्स 20% हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं। व्हाट इज LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मीन्स कि कोई भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो हर एक कमर्शियल बैंक को क्या कहती है वो, कि कुछ जो भी उनके जो भी टोटल डिपॉजिट है उनके कोई भी कमर्शियल बैंक के, कुछ उसका मिनिमम परसेंटेज डिपॉजिट दे हैव टू केप्ट विद देमसेल्फ और विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को कुछ डिपॉजिट, कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट उनको कुछ अपने पास एज अ रिजर्व रखना रहता है, जैसे दैट इज कॉल्ड दी SLR, और कुछ मनी, कुछ रिजर्व उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, दैट इज कॉल्ड CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तब ये जो रेट होता है कि कोई भी बैंक 5% अपने पास डिपॉजिट रख रहा है या 20% डिपॉजिट रख रहा है, या कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कितना परसेंट अपने डिपॉजिट का रख रहा है, सो दिस रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है कि इतना परसेंटेज ऑफ मनी डिपॉजिट दे हैव टू केप्ट विद देमसेल्फ और विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि 1000 है और 20%, तो हमें यहाँ पे राउंड पढ़ना पड़ेगा कि मनी इकोनॉमी में कैसे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं राउंड। ये हो गया आपका डिपॉजिट, ये हो गया आपका LRR, और ये हो गया आपका लोन। देखिए मेन जो फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक का two main functions are there. First one is accepting the deposit and the second one is advancing the loan. उन क्या करते हैं, सबसे या तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं या तो लोन को एडवांस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राउंड 1। राउंड 1 में इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, LRR आपको दे रहा है 20%, तो 1000 का 20% हो जाएगा आपका 20% 200 एंड रेस्ट विल बी 800। सो अब ये जो है LRR, कोई भी बैंक अपने पास 200 एज अ रिजर्व और बाकी जो मनी बचा 800 वो लोन पे दे दे। और इसमें देखिए कह रहे हैं ऑल ट्रांजेक्शंस आर बैंक। तब ये नहीं कि ये जो मनी इसको हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई भी लेगा, बट हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लिए कि ये सारा ट्रांजेक्शन बैंक में होगा। सो 8000 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8000 का 20% यहाँ पे कोई बैंक क्या करेगा, 800 का 20% निकालेंगे 160, अब यहाँ बचा 640। अब ये 640 थर्ड राउंड में, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक डिपॉजिट आपका 5000 नहीं हो जाता, ये 1000 नहीं हो जाता और लोन 4000 नहीं हो जाता। अब ये जो डिपॉजिट है 5000 1000, अब ये 1000 आया कहाँ से, तो जब हम लोग बात करते हैं 1000 आया कहाँ से, सो ड्यू टू मनी मल्टीप्लायर। ये सारा कंसेप्ट हम लोग 10 टाइम्स 100 टाइम्स क्लास में पढ़ चुके हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है, कि कोई भी इकोनॉमी मनी कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो 1/LRR। यहाँ पे LRR कितना है 20%, सो 20% कितना हो गया, ये 5 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट जो भी था इनटू ये हम लोग 1/LRR करेंगे, दैट इज 5, जो भी आया 5 टाइम्स। इनिशियल डिपॉजिट 1000 इंटू 5, सो इट विल बी 5000। यही है आपका ये 5000। दैट मीन्स कि इकोनॉमी में जो भी क्रेडिट क्रिएशन, इनिशियल डिपॉजिट वी हैव स्टार्टेड विद द 1000 एंड एंड विद द 5000, तो इतने मल्टीपल टाइम्स आपका क्या है, इनकम इंक्रीज हो रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, विच इज डन बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। कौन करता है, कमर्शियल बैंक इसको करती है। अब हम लोग जब बात करते हैं कि अगर अब आता है आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, दैट मीन्स आपको कोई भी एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बताओगे कि अजम्पशन, या ये बताओगे कि क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री एंड LRR basically it is decided by the central bank of any country. So after that you should write the assumptions. आपको assumption लिखना is
वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन लिखना पड़ेगा। फिर अजम्पशन के साथ आपको ये इनिशियल डिपॉजिट LRR, फिर आप ये टेबल बना के पूरा जो भी इसके वर्किंग है उसको दिखाओगे। फिर 5 टाइम्स 5000 कैसे हुआ, उसको मल्टीप्लीकेशन दैट इज मनी मल्टीप्लायर की वजह से हुआ। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उस आंसर में एक्सप्लेन करने पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है तो। Okay, so it's all about today's class. We will continue to solve others question in the next class also. Thank you.